अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान शरीफ और आप देख रहे हैं द मीडिया वाले। आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानी, ऐसे गांव की कहानी बता रहे हैं जो आज तक आपने कभी भी इसको ना कभी सुना होगा कि जहां हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रहा करते थे। जब पार्टीशन के वक़्त ये अलग-अलग हो गए तो इनके बारे में यहाँ के जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो क्या बताते हैं, आइए उनकी ज़बानी जानते हैं। हिंदुस्तान से पाकिस्तान बनया ना, मेरा प्यो उदों जिउंदा है। वो ना खसरी ऐसे निकले हैं, ऐसे दिन चढ़े ना बंबा वाले कैंप लाए हैं जाके। एक कभी घरों निकले ही नहीं सन। अच्छा जी। हाँ, ऐसे थोड़े दिन चढ़े ना बंबा वाले पड़े हैं, कैंप लाए हैं जाके। दुआले पिंड मुसलमानों के हैं ते विशकार हिंदू वाले हैं ते बदकारी नहीं है होने देंगे पिंडे। फिर एक साढ़े गुआढ़ से एक मेला रही, और जुआ करानी होंगी करानी। कौन? मेला रही। मेला सही? हाँ, हिंदू ही? हाँ। अच्छा। ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਮ ਲਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਲੇ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੋੜ ਬੰਬਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਮੋਹਣੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਿੱਦੀ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦਰ ਦਮਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ? ਹਾਂਜੀ। ਦਮਿੰਦਰ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਦੀਵਾਨ ਕਲਾਸ਼ ਨਾਥ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਦੀਵਾਨ ਕਲਾਸ਼ ਨਾਥ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਮਿੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਪਤਾਸੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਐਡੇ ਐਡੇ। ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ? ਪਿੱਪਲ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਖਰਾੜੀ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕਰਤਾ। ਪਤਾਸੇ ਕਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ 4 ਰੁਪਏ ਚੁੱਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂ, ਹੇਠ ਖਾਣ ਦਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਡਿੱਗਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਧੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੇ ਨੇ? ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਗੋਵਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਲਾਲਚੰਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੋਹਣੀ ਯਾਰ ਸੀ। ਕੀ ਮੋਹਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰਾਓ। ਮੋਹਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੋਹਣੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਖੇਡਦਾ? ਬੰਟੇ, ਖਰੋਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਿੱਦੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਭੈਣੀ ਆਵਾ ਮੋਹਣੀ। ਗਿੱਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਲੀ ਨਾਈ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੱਟੇ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋੜਾ ਸੀ, ਹੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਲਵੋ ਲਵਾਉਣ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਾਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉਹ ਦਸੂਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ? ਦਸੂਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਦਸੂਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੇਠ ਖੰਘਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਦਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਏ ਦਵਾਨ ਨੂੰ। ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਸੀ,
ਦੀਵਾਨ ਕਰਾਏ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਈ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ? ਖਸਰੀਆਂ ਦੇ, ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ? ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਡੰਗਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਦੁਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦੁਆਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਦੁਆਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਟਲ ਦੁਆਨਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਜਾਮ ਕੇ ਚੀਮਾ। ਆ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਦੁਆਨੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਐਡੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ? ਖਸਰੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਖਤੀ ਲਾਈ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 2 ਘਰ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 2 ਘਰ ਸਨ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਲਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਕੀਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਝਟਕਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਮਝ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਝਟਕਾ ਕੀਤਾ ਕੁੱਕੜ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਮੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਢਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹੀ ਕੱਕੇ ਚੱਕੋ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪੈ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਕੇ ਚੱਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਬੋਦੇ ਵਾਹ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਉਸੇ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਯਾਰਾਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਲ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੌਕਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਬੜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਬੜੀ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੋਕ मजदूरी करके तो अपना पेट पालते सन। अब हम उधर मौजूद हैं, इधर हम आपको अपने नाजरीन को दिखाएंगे कि ये स्कूल पाकिस्तान बनने से पहले का है और यहाँ पर अभी भी वो जो है वो कतबे लगे हुए हैं। और जिसके ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, बिल्ड बाय लाल देवी दिता मलपुरी इन मेमोरी ऑफ हिज सन, जिसको लाल देवी दिता मलपुरी ने इसको तमीर किया अपने बेटे भोलानाथ की याद में। तो ये डॉक्यूमेंट्री है, ये पूरी दुनिया में जो देखी जा रही है। और जो अगर इस वक्त जो हिंदू जो यहाँ से चले गए थे उनकी अभी भी जो वो नस्ल है वो उधर हिंदुस्तान में होगी, तो वो भी अगर देख रही होगी तो उनको भी पता चलेगा कि हमारे आबाओ अजदाद ने यहाँ पे क्या क्या तमीर करवाया। ये कमरा जो है, ये स्कूल का कमरा जो है वो राय बहादुर लाल ब्रिजलाल साहबपुरी ने 1930 में बनवाया। नाज़रीन, ये जो कमरा जो है, जो कमरों की जो तमीर की गई, ये दीवान ज्ञान चंद साहबपुरी ने अपनी पुत्री यानी कि अपनी बेटी श्रीमती द्रौपदी देवी की याद में 1930 में बनवाया था। बहुत तारीखी स्कूल है, बहुत से कतबे लगे हुए हैं इधर। जगह जगह पे जो हम अगर देखें तो ऐसे लगता है कि अगर हम सोचें तो उसी दौर में हम जो है वो पहुंच चुके हैं। अगर इनकी हिफाजत ना की गई तो ये तारीखी विरसा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम दिखाते हैं, ये एक हाल जो है वो तमीर किया गया, देव दयाल हाल तमीर करदा दीवान ज्ञान चंद मुल्क राज ने जनवरी 1928 में। ये जो कमरा है ये बिल्ड बाय लाला जगन्नाथपुरी इन मेमोरी ऑफ हिज मदर श्रीमती लक्ष्मी देवी हु डाइड ऑन 20 जनवरी 1927 को। 20 जनवरी 1927 को जो थी ये देहांत इनका हुआ था। लाला जगन्नाथपुरी ने अपनी जो माँ है श्रीमती लक्ष्मी देवी, उसकी याद में ये जो कमरा जो है वो 1927 में इसको तमीर करवाया। के हाथों से
जो हिंदुओं और सिखों के हाथों से अभी भी ये जो वो बनाए गए जो कतबे थे उन्हीं के हाथों से कंधा किए गए, आज भी जो है वो उस दौर की जो है वो यादों में उनको ले जाता है। उनके हाथ के बने हुए कमरे, उनके हाथों के लगे हुए ये जो कतबे हैं आज भी जो है वो कायम दायम है। नाज़रीन, ये जो कमरा है ये कमरा लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल साहबपुरी जो सिविल सर्जन थे उस वक़्त के, उन्होंने 1930 में बनवाया था। नाज़रीन, अब मैं आपको वो कमरा दिखा रहा हूँ कि जब ये कमरों की तमीर हो गई, बच्चे स्कूल में जो पाकिस्तान बनने के बाद जब इन बच्चों की तालीम हासिल की तो फिर इन कमरों की जब कमी वाक़या हुई तो एक और स्कूल जो है वो हमारी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको बनाया और सैयद हसनात अहमद जो उस वक़्त के डिप्टी कमिश्नर सियालकोट थे, उन्होंने इसकी तमीर करवाई। शेख मोहम्मद अमीर मैनेजर पब्लिक हाई स्कूल घड़तल के थे ये उस वक़्त। मैं इस अदारे में जिसका नाम गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल घड़तल है, एज आ हेड मास्टर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और ये इस इलाके का एक तारीख़ी और अपनी हैसियत में एक अनमोल स्कूल है, मिसाली स्कूल है। उसकी वजह शोहरत जो है वो ये है कि क्योंकि ये 1888 में ये हमारा साथ ही गाँव है जिसका नाम घड़तल है। और बेसिकली ये घड़तल गोजरा दो अलहदा देहात है, लेकिन ये दोनों यकसां और एक साथ ही बोले सुने समझे जाते हैं। अगर आप घड़तल किसी को कहेंगे तो बहुत मुश्किल से कोई आपको जो है ना समझा पाएगा कि घड़तल है कहाँ। बेसिकली ये दोनों अलहदा देहात है। अलबत्ता ये स्कूल जो है ये घड़तल की ज़मीन पर या धरती पर आबाद है। इसके जो रूम्स हैं या कमरे हैं वो आज भी उसी पुरानी तर्ज पे बने हुए हैं, जिनकी दीवारें जो हैं वो तकरीबन 27 इंच तक मोटी हैं। और ये 27 इंच मोटी दीवारें हरारत को भी अंदर आपको पता नहीं आने देते और सर्दी को भी अंदर नहीं आने देती। और इनकी हाइट जो है वो 18 से 20 फुट ज़्यादा है, यानी 18 से 20 फुट तक इनकी हाइट है। और ये कमरे जो हैं हर एक ने अपने माँ बाप भाई बेटी किसी न किसी के बिछड़ने के सूरत में बनाया है। और अब तक इस अदारे में तकरीबन 1925 से लेकर 20 हेडमास्टर्स आ चुके हैं। पहला जो इस अदारे का हेडमास्टर था उसका नाम था जी संतोख सिंह चीमा, तो वो तकरीबन 25 से 27 बरस तक यहाँ पर हेडमास्टर रहे। उसके बाद आज इस इदारे की सरबराही जो है मैं बतौर सरबराह हूँ जिसका नाम सजाद मसीह है। तो ये इदारा अपनी मिसाल आप है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ये जो है करबो जवार के जितने भी इलाके थे वहाँ से, ये वैरोवाला इसके करीब है, फिर यहाँ पर बेगोवाला है और वहाँ है गोजरा है, बमा वाला है, इन सारे इलाकों से बच्चे यहाँ पर आते थे। गो आज के दौर में ये इदारा जो है ये चूँकि बहुत सारे दाएँ बाएँ इदारे बन चुके हैं और इसकी इदारे की जो खूबसूरत असासियत है कि आज भी यहाँ पर लगे हुए कतबे जो हैं वो आपको बयान करेंगे कि इसकी अपनी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये अपनी तारीख अपनी ज़ात में खुद है। पढ़ाते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं स्कूल का तालिब इल्म भी रहा हूँ और इधर मैं पढ़ा भी रहा हूँ और इसकी स्कूल के हम हिफाजत भी कर रहे हैं कि ताकि ये जो असासे हमारे आने वाली नस्लों तक ये महफूज रहें। इस लिहाज से ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये इतना तारीख़ी स्कूल है जिसका मैं टीचर हूँ। तो इस गाँव में जितने भी पुराने असासा जात हैं गवर्नमेंट को उनकी हिफाजत करनी चाहिए और ये स्कूल जो बड़ा तारीखी स्कूल है। नाज़रीन, गांव में इस वक्त एक ऐसा मंदिर भी है उस वक्त का कि जहां जो जिसके कुछ आसार अभी जो है बाकी हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, ये उनके जो है वो हिंदुओं के भगवान जो हैं वो बने हुए हैं और कलरफुल जो उस वक्त भी जो थे वो इतने कलरफुल जो थी ये चीज़ें थी। और मंदिर में इनके जितने भी भगवान हैं उनकी तस्वीरें हैं, उनके जो अंदर इसके अंदर पहले बुत रखे होते थे और इसकी जो आज भी जो है वो इस पर कुछ बुत भी बने हुए हैं। इसके साथ साथ अब भी ये जो है इसकी भी तारीख जो है ये बहुत पुरानी है। ये मंदिर था ना, ये बहुत खूबसूरत है। इसका 4 दीवारी थी, ऐसे जैसे ये ना, इसी तरह इसके साथ 4 दीवारी थी, 4 दीवारी थी इसके साथ। लेकिन बस ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कोई करता गया वैसे काबू करते गए। इसके साथ में छोटी छोटियाँ उधर मंदिरियाँ थी, दो इधर साइड पर भी मंदिरें थी, तो इधर काबी की तरफ भी मंदिरियाँ थी। इसमें छोटी छोटी मंदिरियाँ थी, उसमें भी इसी तरह मतलब कि उनके इबादत खाने के या वो वजह से भी वे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इबादत करते थे, वैसे बने हुए। जब वो मतलब कि हिंदू यहाँ चले गए फिर वे बर्बाद हो गए। फिर लोगों ने अपने खेत में ला लिए। फिर उसके साथ एक और उधर सब मड़ी बोलते थे, उसके मंदिर था, एक बहुत बड़ा मंदिर था।
उधर मतलब कि वो अपने मुर्दे शुर्दे से जो जलाते थे सड़ाते थे उधर भी, वो भी मतलब कि वो भी ख़त्म हो गया। बनाए हुए हाथों की ये दीवारें आज भी उसी हाल में हैं और हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि इसकी हिफाजत की जाए ताकि जो आने वाली हमारी जो नई जनरेशन है उनके लिए ये एक तारीख जो है वो ज़िंदा रहे, उनके दिलों में ये ज़िंदा रहे और उनको पता चले आने वाली नस्ल को कि इसके पीछे क्या कौन कौन के लोग थे और यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले क्या क्या हुआ। पूरी तारीख जो है वो गवाह है इस गांव की।